digital platform of the New Indian Express Group for fearless dialogue and debate. We have with us today Mr. Prakash Javadekar, who wears many hats. He is a real regulator who influences media and environment. He is Minister for Information and Broadcasting. He also leads Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change. Prakash also holds additional charge of Department of Heavy Industry and Public Enterprises. We are going to discuss with him important subject, managing both information and environment in the era of false and fake news. प्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत स्वागत, बहुत आनंद आया। बहुत everybody now discussing कि who is responsible and mother and father of fake news in India. कितना trend आ रहा है? You are also not happy. Everybody is not happy. They accuse you of fake news and you accuse them of fake news. What is the reality as information minister? You must be knowing better. See, I think fake news are more dangerous than paid news. Paid news also are dangerous. But paid news has a limited objective of propagating one cause or person or somebody. But here, the fake news disturbs society. Fake news spreads lies. And therefore, fake news are more dangerous. They can vitiate the atmosphere. They can disturb the peace. They have all potential to damage the social fabric. And therefore, fake news they create such impression like what I said. There was one tweet from a famous advocate, and he said that a woman threw her 5 children in the river because they had no food. But when police went to her house, there was food already prepared, cooked. Then there was enough stock of food grains. So everything was there, but this one news creates total negative impression of the situation in India, and world agencies also pick up such news. So that is most dangerous. But you are also being accused of that. You are आपके जितने लोग आजकल कहते हैं कांग्रेसियों ने नाम दे रखा है उनका अपोजिशन वालों ने कि आपके जो भक्त हैं वो भी रोज फेक न्यूज क्यों पे वीडियो बना के डाल देते हैं, कभी यहाँ से जोड़ के कभी वहां से जोड़ के, तो सब तरह से चल रहा है ना। ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कब कहाँ रुकेगा? नहीं, मेरा मानना है कि फेक न्यूज समाप्त होना ही चाहिए, और इसमें किसने किया ये मुद्दा नहीं है। ये गलत है, सोसाइटी के लिए डेंजर है। फन और विनोद अलग है, ह्यूमर इज डिफरेंट एंड फेक न्यूज इज डिफरेंट। नहीं, as you rightly said कि नो कौन है इसके अंदर भी तो जाना पड़ेगा, because you have access to all sorts of technology, vigilance, आपके पास instruments हैं, you can always track down anybody who's doing. No, but see, it now this social media is controlled, or actually should be controlled by it is regulated by IT Act 2000, and IT Act has a limited provisions. Therefore, we are also thinking to have some effective measures where you really take effective steps to actually stop this menace. You want to amend the act or what? What are you saying? No, we are not doing, because that act is IT Act is looked after by Ravi Shankar Prasad. But you're the spokesman of the government of India. Somebody has to see the content. So I don't know the mechanism of it, but there is need for it. Okay, there's a need for amending the IT Act according. No, I'm not saying amending the IT Act because I have not studied the IT Act, but I can say that there is need to look into this issue afresh. And plug the loophole if there are any. If there are any. So do you mean to say that IT Act, because one is that you have been excessively using the IT Act to silence your opponent also. No, but actually not. IT Act in our country is so liberal that we never attack somebody through IT Act. It is not the intention of the IT Act. According to because there is no arrangement at present that who will look after the content. So fake
fake news is an issue of content. Correct. You are absolutely right. It's content creation. Everybody is becoming creative. Everybody is on the YouTube. Everybody on the Instagram. Everybody is on the. क्या आप इतने लिबरल हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ फेसबुक के वहां पर चले गए तो उन लोगों का प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ फेसबुक के हेडक्वार्टर में जाते हैं हम सब लोग फेसबुक पे जाएंगे तो उनके फॉलोअर इतने सारे हैं और उसमें कई नकली भी होते हैं ना कई क्रिएट करते थे उठा करके ज्यादा भक्ति के चक्कर में कई लोग हैं मिसयूज करते हैं उसका तो आपको लगता नहीं कि जो फेक न्यूज बनी है वो इट इज मोर ए पॉलिटिकल वेपन टू डिस्ट्रॉय ईच अदर I can say that those who have been rejected by people in the voting are now venting their anger or desperation through creating such fake news. For example? For example, all these examples, there are hundreds of fake news examples and which also tells us the story of who are behind those. So there is, you can identify people. And therefore, it is those who have been rejected, their desperation comes out of in the form of fake news. No, but the Congress people and everybody say that you have so much of control over media, both electronic. No, we don't have control over media. We don't believe in control. It is the complete press freedom in our country. The control was done in emergency. When you also went to jail, I also went to jail. But not that is true. People, I'm just saying the opposition voice, they are saying you are using the media excessively to silence them. Therefore, there is no way out for them to go to the social media only, which you mastered in 2014 because most of the victory, like Trump and in America after 2000, he followed Modi model to win the election through social media. That social media is being used now to attack you. No, but see, you cannot sustain falsehood through any medium. So, आप झूठ बोलते रहोगे और आप जीत नहीं सकते. उसके लिए सच्चाई आपके साथ होना जरूरी है. प्रकाश जी, झूठ और सच यही प्रॉब्लम हो रहा है ना कि अब मैंने 45 साल से जर्नलिज्म में हूँ. मेरे को पहली बार लगता है कि झूठ और सच कैसे पता लगेगा. मुझे लगता है लोगों को भी समझता है और फैक्ट्स होते हैं ना. चाइनीज बॉर्डर पे या बाकी जगह क्या हुआ लोग समझते हैं और अगर उसका एकदम विपरीत कोई कह रहा है तो गलत होता है. जैसे आज कांग्रेस ने कहाँ आ गई. राहुल गांधी इस तरह के रोज ट्वीट और हमले कर रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत हम तेज तरीके से कर रहे हैं, लेकिन नॉट ए सिंगल अपोजिशन पार्टी इज विद कांग्रेस. कांग्रेस इज नाउ इन ग्रैंड आइसोलेशन. इट्स इन आइसोलेशन वार्ड. इट इज इन आइसोलेशन वार्ड. मैं आपको प्रकाश जी एक बार, क्योंकि कुछ लोगों का आपके लोगों से बातचीत होती रहती है, लोगों को लगता है कई बार आप लोग गांधी परिवार से ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं. जनता ने हरा दिया उनको. हम नहीं, लेकिन वो आज कट गए अपोजिशन से, ये मैं बता रहा हूँ. नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पर उनका नाम इतनी बार लेते हैं आप कि राहुल नहीं लेते. राहुल नहीं लेना है, लेकिन ये राहुल को भूलना चाहिए लोग. आप भूलने नहीं देते उनको. राहुल को नहीं, आप ही नहीं भूलने देते. डेस्परेशन एक तरह है कि जिसके कारण ये लोग ऐसे सब फेक न्यूज के विषय में भी अगुवाई करते हैं. और फेक न्यूज के बाद आपने चाइना की बात भी छोड़ी. मैं उसी के बारे में आ जाता हूँ कि प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन लीडर्स के मीटिंग में कहा कि चाइना वाले इधर नहीं आए थे, ये सच है. और आज मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल पे, आपके टीवी चैनल जो लोग कहते हैं कि आप सपोर्ट करते हैं उनको, वो ये कह रहे हैं कि चाइना पीछे हट गया. तो वो सच था, ये सच है. अब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा वो सच कहां से था. हट रहे हैं वो लोग. एक मिनट. प्रधानमंत्री ने कहा वो सच था. अपने ही एलएसी के अंदर जो एकदम सीमा पर आए थे वो अपने ही एलएसी के अंदर पीछे जा रहे, ये फैक्ट है. नंबर 1. नंबर 2, अपने एलएसी में पीटीआई, मैं वही बता रहा हूँ, पीटीआई क्योंकि डिसएंगेज करते हो ना, तो डिसएंगेज करते हो तो दूरी बनानी. अब भी 2 गज की दूरी का जमाना है, तो ये मुद्दा है. तो बफर जोन बढ़ गया है, तो 2 गज की दूरी बढ़ गया. तो आपका कहने का मतलब एलआईसी के अंदर अपने एरिया में आगे बढ़े थे और अपने एरिया में पीछे चले गए, यही कह रहे हैं ना. क्योंकि see the PTI interview which quoted which interviewed the Indian ambassador also, but they also gave a tweet which created this controversy which was not in the original interview.
मैं तो अभी टीवी देख रहा हूँ, सामने लग रहा है कि चाइना वाले पीछे हट गए। अब समझ नहीं आता, टीवी चैनल सारे वही चार्ज चला रहे हैं, एनडीटीवी। नहीं तो वही जो सरकार ने कहा है वही सच है। नहीं, सरकार ने ये जो चला रहे हैं ये किसने कहा है पीछे हट गए? नहीं, जो जानकारी उनको मिली वही दिए। आप जैसे सूत्रों से बात करते हैं वैसे वो भी सूत्रों से बात करते हैं। चलो, फेक न्यूज की बात आपने कर दी कि फेक न्यूज ठीक। देश को बहुत नुकसान हो रहा है। आपने जैसे ठीक कहा कि इससे बहुत ज्यादा अलग किस्म के नुकसान होते हैं। उसको रोकने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर चार्ज ये है कि आप जर्नलिस्ट जो आपके खिलाफ लिखता है उनके खिलाफ एफआईआर सारे प्रदेशों में करा देते हैं। नहीं 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 करते। मैं नाम ये नहीं तो लूंगा, जो जर्नलिस्ट। कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये जिनके ऊपर कोई ऐसा हुआ है वो आप देखोगे तो केस भी समझने लायक है। तो ऐसा देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी विंडिक्टिव कभी नहीं रही और कभी नहीं रहेगी। नहीं, आज यू जस्टिफाइंग द एफआईआर लॉन्च अगेंस्ट जर्नलिस्ट व्हिच हु आर अपोज्ड टू यू। No, no, not opposed to us. It is not because they are opposing us. See, They are there writing are against you. one number. There are n number of journalists who criticize government. We don't file FIRs against them. Day before yesterday, some foreign journalists came me and they asked me the same question: कि those who are critical are being targeted. I said, you are critical throughout. Then, are you being leveled or put a sedition charge? No, because we don't do that in the fashion of vindictiveness. We do it as per the law. कोई एक आपका जो अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी एंड इंप्रेशन जर्नलिस्ट में जो है, एक जर्नलिस्ट जो आपके नजदीक समझा जाता था उसके खिलाफ एफआईआर हुई तो आपके होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पार्टी सबने ट्वीट कर दिया। बाकी जर्नलिस्ट जो बंद है उनके बारे में आपकी पार्टी शांत है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो नहीं, जर्नलिस्ट आप दिखते हैं, एक जर्नलिस्ट आपका है एक उनका है। ये ऐसा तो नहीं है, होता था। ऐसा नहीं है। जब सीधा सीधा वेंडेटा के तहत एक पत्रकार को, प्रभु चावला एक समझिए, आरोप तो कुछ नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सब खारिज कर दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी एक को इंक्वायरी के लिए बुला के पुलिस स्टेशन में 15 घंटे उसकी जांच करते रहना, ये तो हार्डकोर क्रिमिनल का भी आप ऐसा नहीं करते। तो इस तरह से पत्रकार को ये पत्रकार, सभी पत्रकारों ने इसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी। प्रकाश जी, एक जो चार्ज काफी आप लोगों की तरफ से जब भी भाषण आते हैं, जो भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी आपके खिलाफ बोलती है उसको आप एंटी नेशनल डिक्लेयर करते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं करते हैं। आप पाकिस्तान की तरफ से, जैसे आप कह रहे थे चाइना की तरफ से बोल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर अपनी वीडियो आप 2014 से पहले की उठा लें, अपनी हो, मोदी जी की हो या राजनाथ जी की हो, किसी की भी हो, जो शब्द आपने पाकिस्तान के बारे में यूज किए, जो शब्द आपने चाइना के बारे में यूज किए, कांग्रेस ने आपकी नकल करके आपके खिलाफ यूज किए। नहीं, नकल अच्छी नहीं की, नकल में अकल नहीं दिखाई। नकल तो की थोड़ी सी, नहीं, नकल की लेकिन अच्छी नहीं की, जमी नहीं, क्योंकि उन्होंने भी यही चार्ज लगाया कि पाकिस्तान के गलत है, उद्देश्य गलत है। झूठ फैलाना ये उद्देश्य है, एक विद्वेष फैलाना एक उद्देश्य है, केवल बदनाम करना ये उद्देश्य है, तब आपका ये मुहिम नहीं चलती, सक्सेसफुल नहीं होती। नहीं, आपने भी जब मनमोहन सिंह जी थे, जब पाकिस्तान का हुआ, जब चाइना का हुआ, आपने भी कही, आपकी वीडियो चली है, वहां पर आपने जो कुछ कहा वही बात अगर राहुल गांधी कहता है या सोनिया जी कहती हैं तो आप कहते हैं आप तो चाइना के साथ हैं, आप पाकिस्तान के साथ हैं। देखो, जो सरकार ने देखो, सरकार जनता को सच बताती है और सच जो बताती है वो कोई भी कहे उसको हम बुरा कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। उनको झूठ को पकड़िए ना, उसको एंटी नेशनल क्यों बोलते हैं आप? नहीं, एंटी नेशनल किसी ने आपको जी आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। हम झूठ खबर को झूठ खबर बोलते हैं जब दो समाजों में विद्वेष पैदा करने का मुद्दा हो या दो समाज में लड़ाई लड़ाने वाला है, तभी मुद्दा आता है। अदरवाइज जब वो कहते हैं आप, मैं प्रकाश जी एक एग्जांपल दे, जब राहुल गांधी ने आपकी चाइना पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन उठाया, राइट और रॉन्ग, मैं उसकी मेरिट में नहीं जान जाता। अब आप पार्टी अध्यक्ष करते हैं और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड करने को हक नहीं है, ये कोई बात नहीं है। आपके कितने एमपी है जो मीटिंग अटेंड करते हैं? मैं आपको नाम गिना देता हूँ अभी। नहीं, अब एकदम साफ है कि सारे लोगों के सामने, आंखों के सामने चल रहा है। और जो परसों तक बोल रहे थे कि कैसे हो रहा है चाइना में, हमें बताना चाहिए, आज सब सच्चाई सामने आ गई, तो उनके पास आज कुछ बोलने जैसा नहीं है। पर एक बात लगता है, वातावरण तू मैं का कन्फ्रंटेशन इसका ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक तो आप भी भाषा, उनकी भाषा, सबकी भाषा है, लगता है जैसे हिंदुस्तान के अंदर। हम कन्फ्रंटेशन में विश्वास नहीं करते, हम संवाद में विश्वास करते हैं, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं
और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते, और वैसा ही प्रधानमंत्री कर रहे हर बार। सभी पार्टियों की मीटिंगें बुलाना, सब लोगों के साथ चर्चा करना। कोई भी देश की महत्वपूर्ण घटना होती है तो वो सोनिया गांधी से लेकर सभी को, मुख्यमंत्रियों को और विपक्ष दल के नेताओं को भी कभी कभी फोन करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आपके ऊपर कांग्रेस वाले या बाकी लोग भी चार्ज लगाते हैं कि आप दूरदर्शन का दुरुपयोग करते हैं, आप मीडिया के ऊपर दबाव डालते हैं, जो आपके खिलाफ लिखता है उनके एडवर्टाइजमेंट बंद कर देते हैं। कई एग्जाम्पल होंगे जो सच है या झूठ में नहीं। ये कभी हुआ नहीं। मेरे आपकी मिनिस्ट्री ने अखबारों कई लोगों के पैसे नहीं दिए, जो डीजीपी ने कई सारे देने अभी तक नहीं दिए। वो अलग था, ये करेक्ट है। और मैंने अभी पिछले 4 महीने में इतना बहुत सारा, क्योंकि लोग डिफिकल्टी में भी थे कोविड के कारण, तो लगभग सभी जो बकाया रकम था वो चुकाया है। अब बहुत थोड़ी, एक 80% बिल दे दिया है, 20% बचा है। और ये 16-17 में जो नया अकाउंटिंग सिस्टम आया, उस समय से आपका ये लोगों के बिल थे, लेकिन वो हमने कि आप लोगों को हमने क्लियर किए। अब मैं बता सकता हूं कि देयर इज प्रैक्टिकली नो पेंडेंसी ऑफ द बिल्स। मैं स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहता, मैं देख रहा हूं कि कई बार लोगों का ये कि कुछ खास अखबारों को और मीडिया चैनल के नहीं, आप ऐसा हमने कभी नहीं किया। एक फॉर्मूला के तहत पैसे दिए, एक फॉर्मूला के तहत दिए कि भाई जितने हैं उसके अपने पास कितने हैं, तो चलो 50% सबको दे सकते हैं, तो जो भी उसका ड्यू है उसका 50% दिया। एक को 100% दिया और दूसरे को 10% दिया, ऐसा नहीं कभी किया। एक आपके विरोधी जो है ना, जो उनका फेवरेट वर्ड है कि आप हर चीज का संघीकरण करते हैं। दूरदर्शन के अंदर संघ के लोग, जितने संघ परिवार के लोग हैं, अपने उनके प्रसार भारती में जो अपॉइंट हुए हैं उनका भी है, जो कई और पैनल्स हैं, सब जगह संघ के लोग, संघ के स्वयं सब बैठे हुए हैं। तो आपको मुझे नहीं लगता, आज समझो प्रसार भारती की आज नियुक्तियां हुई है, वो कोई संघ के संबंधित थोड़ी ना लोग हैं सभी। ऐसा हम नहीं करते मेरिट से। आज मुझे उल्टा बताइए, मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ, क्या हमने आज प्रसार भारती के 5 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स नियुक्त किए हैं, किस पर आपत्ति हो सकती है? किस पर कोई जो मीडिया को नहीं जानता, ऐसा कौन आदमी है उसमें? तो सब जानने वाले अच्छे लोग हैं। मैं इंडिविजुअल पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पत्रकार बंधु भी हैं मेरे साथ के अंदर, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा कहीं भी। क्योंकि पहले भी जो अपॉइंट हुए लोग, आपके से पहले भी अपॉइंट हुए, उसमें कुछ लोग एसोसिएशन आपके साथ है। मेरे को प्रमोद महाजन का एक जवाब याद आता है, जब मैंने उनके साथ सीधी बात की थी। मैंने कहा था उनको कि आपने MTN BSNL के अंदर संघ के लोगों को, विद्यार्थी परिषद के लोगों को अपॉइंट कर दिया। उनका जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जवाब था, प्रभु तुम विद्यार्थी परिषद में रहे हो, हमारी सरकार सत्ता में आई है, अगर मैं विद्यार्थी परिषद के लोगों को नहीं अपॉइंट करूंगा, क्या कांग्रेसियों को करूंगा? हाँ, बराबर है। तो उनका जवाब ये था। वो तो सही है कि कांग्रेस वाले जब आते हैं तो वो भी अपने लोगों को अपॉइंट करते होंगे ना, ऐसा लगता है जैसे नहीं। ऐसा केवल अपने, ऐसा नहीं है, मेरिट से जिनका वकूब है और जिनका अनुभव है और जो उस पद के लिए लायक है, उन्हीं को नियुक्त होता है कि नहीं, ये मुद्दा है। अब एक तो इन्फॉर्मेशन आपने मैनेजमेंट जो किया है, लोग कहते हैं मैनेज किया है, क्योंकि मोदी के खिलाफ कुछ छपना नहीं जाता है, जो छपता है उनसे आप बातचीत नहीं करते, उनके साथ आप कुट्टी जिसको बोलते हैं कर देते हैं। पर मैं दूसरा सब्जेक्ट एनवायरमेंट के सब्जेक्ट जाऊंगा कि आपने एनवायरमेंट रिपोर्ट, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, उसको लॉकडाउन से थोड़े पहले रिलीज कर दिया आपने, ताकि चर्चा, लॉकडाउन में चले गए लोग, चर्चा नहीं हो और ऐसा लगे लोगों को कि आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। बड़े बड़े सत्य नहीं है। पहले तो ये सत्य नहीं है। हमारे यहाँ कानून है, नियम है कि 2 महीने हम किसी भी नए विषय को लोगों के सलाह के लिए रखते हैं। वो वेबसाइट में रखते हैं और लोग हजारों की संख्या में अपने सुझाव या शिकायत दोनों देते हैं, और ऐसे अभी भी आए हैं। फिर भी इस बार कोविड का था, इसलिए हम अभी 10 अगस्त तक कोई भी अपनी शिकायत या सुझाव दे सकता है। तो प्रैक्टिकली 6 महीने मिल गए, क्योंकि 11 फरवरी को हुआ था। यह हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार नियम के अनुसार 2 महीने ही मिलेंगे, लेकिन इस बार कोविड का संकट था तो वो भी हमने बढ़ाया। नहीं, इस बार कुछ और भी उन्होंने कहा है लोगों ने कि आपने इस दौरान काफी इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉर्पोरेट्स को एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दी, एनवायरमेंट खराब हो गया उससे। कभी मेरा सवाल एक बड़ा बाद में पूछूंगा, ये सवाल मेरे पास आया था, मैं पूछ रहा हूँ। प्रभु ऐसा है
कि मैंने इंटरेस्टिंगली 2009 से आज तक हर साल कितने एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिए गए इसके आंकड़े देखे आपको भी दिखा सकता हूँ। एक तो 2009 में एकदम 700 एनवायरमेंट क्लियरेंस दिए गए और बाद में हर साल 400 और 500 के दरमियान होते हैं। आज भी वही आंकड़ा है। फर्क क्या पड़ा? फर्क इतना ही पड़ा कि पहले टैक्स के बिना कुछ नहीं मिलता था और टैक्स के बिना नहीं मिलता था और 500-500 दिन लगते थे, अब हम 100 दिन में दे रहे। यही अच्छा फर्क लाया है हमने और इसलिए उद्योग जगत भी निश्चित रूप से आश्वस्त हो गया है कि हमें मेरिट पर मिलेगा और निश्चित मिलेगा। ये सवाल जो आया मेरे पास, several environmental groups have criticized you, saying that it will help industry degrade forests and mines with less clearance. What is your response? नो, ऐसा नहीं है। देखो, उसके देखने के दो मुद्दे हैं। मैं एक आपको नया मुद्दा बता रहा हूँ। समझो कोयला है, कोयला अगर खुले में है, जंगल में नहीं है, तो खोदने में कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोयला जंगल में है और बहुशः जंगल में होता है, जंगल के आपको निकालना पड़ेगा। जब तक कि अंदर घुसने की टनलिंग की पद्धति नहीं आती तब तक आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक बताना चाहता हूँ, एक खदान 40 साल में पूरी खत्म होती है। 40 साल के बाद फिर से वहां पैक करके वहां जमीन फिर से भर के वहां जंगल उगाने में 20 साल लगेंगे, तो 60 साल हुए। 60 साल। तो 60 साल का ये चक्र है। फिर से जंगल मिलेगा, कोयला भी निकलेगा और इसमें वैकल्पिक जंगल भी बनता है उतना ही बड़ा, तो जंगल भी वही डबल बन गया और 60 साल पूरे हजारों साल के पृथ्वी के अस्तित्व में 60 साल कितना बड़ा होता है। ये संभव है, तरक्की भी चाहिए और पर्यावरण नहीं, इसीलिए कहा पर्यावरण की रक्षा भी और विकास भी दोनों साथ साथ, यह हमारा मंत्र है। इस सवाल एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है कि एनजीटी बनाई गई थी किसी जमाने में, स्टॉकहोम की जाके कुछ कहा था, उसके बाद बना दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी ग्रीन बेल्ट अलग से है। तो लोगों को, कुछ लोगों का ऐसा भी है कि एनजीटी जो है वो बहुत ब्लॉक है डेवलपमेंट में, कोई सुधारने में कोई मदद नहीं करती है, डेवलपमेंट रोकने में मदद करती है। क्या लगता है एनजीटी क्या रेलेवेंस है आज के स्टेट में जब सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेल्ट उसको डील करती है? ऐसा है, मैं इसमें एक सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी भी है, वो आपको मालूम है? वो सेंट्रल आपकी मिनिस्ट्री में है। हाँ, तो वो एक है, फिर एनजीटी है, फिर बाकी सारे हाईकोर्ट, बहुत सारे रेगुलेटरी बहुत सारे, एप्का जैसी संस्था है दिल्ली में। तो ये सब अनेक संस्था है। मेरा हमेशा मानना है कि सरकार चलाना सरकार का काम है और सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है कि नहीं, ये देखना कोर्ट का काम है। और इसलिए कोर्ट है, तब बहुत ज्यादा ट्रिब्यूनल्स की ये जरूरत नहीं होती है। लेकिन एनजीटी है, उसको हम पूरा सहयोग देते हैं और एनजीटी के आदेशों का पालन भी करते हैं। तो हम तो सम्मान देते हैं जो व्यवस्था एक बार तैयार हुई। लेकिन मेरी निजी राय पूछोगे तो बहुतायत जो है ट्रिब्यूनल्स की, वो अच्छी नहीं है सरकार चलाने के लिए। वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज जो है, रेगुलेटरी एजेंसी, इज नॉट डिजायरेबल फॉर डेवलपमेंट एंड इवन एनवायरनमेंट। करेक्ट। बट डोंट यू थिंक देयर वाज एन ओपिनियन अर्लियर कि एनजीटी जो है, its existence has to be reviewed. It is not necessary when Supreme Court is already looking in. They have got a green band. So what is the role of NGT? Why don't you disband it? नहीं, जो एनजीटी का इतिहास है, जब वो ये सभी एनवायरमेंट के रिलेटेड इश्यूज आने लगे, तब एक विशेष एजेंसी बने, एक रेगुलेटर बने, जैसे ट्राई है, ये है, ट्रिब्यूनल्स बने, वैसे वो एक ट्रिब्यूनल है, ग्रीन एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल है और इसलिए वो कल्पना थी, लेकिन वो डुप्लीसिटी ना हो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनजीटी का फैसला आप हाईकोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। तो ये होता ही है बार बार, तो ये हमें देखना चाहिए। इससे रोड ब्लॉक हो गया ना, आपके एनजीटी भी है, हाईकोर्ट में जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर जाइए, तो जितने भी एनजीटी जो होता है ना, इसलिए मुझे अनेक देशों में एनजीटी ने तो रोज
वहां पर एनजीओ हैवी हैं, आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे एनजीओ मेंबर बन जाते हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो मिनिमाइज इंटरवेंशन क्यों नहीं करते आप? एक सुप्रीम कोर्ट है, जैसे आपने कहा मल्टीप्लिसिटी अथॉरिटीज हैं, 10 जगह जाना पड़ता है। गुड़गांव में मेरे को पता है कई केसेस हैं जो 8-8 साल से लटके हुए हैं आपके यहाँ, फैसला नहीं होता कि फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट डिसाइड करती है कि फॉरेस्ट क्या होगी, यहाँ एनजीटी डिसाइड करेगी फॉरेस्ट क्या होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड डिसाइड करेंगे फॉरेस्ट क्या होगा, या एनजीटी डिसाइड करेगी फॉरेस्ट क्या होगा। ये सब प्रॉब्लम। 80 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट कहती है कि फॉरेस्ट नहीं है, एनजीटी कहती है ये फॉरेस्ट है। ये कौन सा? ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गोदावरी केस में निर्णय लिया है, तो उसमें फॉरेस्ट क्या है या अभी एक सेटल मुद्दा है, लेकिन उसमें भी चर्चा का अवसर है, होनी चाहिए, और हम जरूर सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन मांगेंगे। आपने गोदावरम की जजमेंट की बात की है, उसके अंदर कहा कि पेड़ लग गए, अगर आपके घर के अंदर जिसमें रहते हैं आप, उस हिसाब से तो आपका घर भी फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देना। नहीं, वो हमने घोषित किया प्राइवेट लैंड के अंदर मैं जो पेड़ लगाता हूं। प्राइवेट लैंड में जो प्लांटेशन है, वो प्लांटेशन को, किसी भी प्लांटेशन को ये नहीं मानते, और प्राइवेट जमीन पर आप पेड़ की खेती करो, कोई रोक टोक नहीं है अभी, और यह आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ की खेती कोई करे तो उसको फसल करते हैं तो 4 महीने में फसल आती है, लेकिन पेड़ की खेती करेगा तो आय आने के लिए 7 साल से लेकर 20 साल तक लगेंगे। तो वो करेंगे, उनका चॉइस है, और उसमें कोई दिक्कत न रहे, इसलिए ट्रांसपोर्ट के नियम, बाम्बू को, जैसे बाम्बू को हमने आपने निकाला ना, बाहर निकाला, तो बाहर निकाला तो अच्छा हुआ, और बढ़ गया, बाम्बू का उत्पादन बढ़ गया। तो आपका जो कहना शुरू में जो कहा आपने, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी लुकिंग इनटू एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हैज टू बी लुक्ड इनटू एंड रिड्यूस्ड इफ पॉसिबल। जरूरी है कि इतने एनजीटी को बंद नहीं करेंगे, एनजीटी को रिव्यू नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसा एक पर्टिकुलर एजेंसी की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक सिस्टम है, तो कितने एजेंसी बीच में चाहिए, और ये एक मुद्दा निश्चित विचार का है और करना चाहिए। एक अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स कोविड के दौरान बहुत इंप्रूव हो गया है owing to COVID measures. What is the government doing for sustaining the same every year and improving the environmental performance index? ये जब खुलेगा, ऐसा है, जो सवाल पूछते हैं वो अगर गाड़ी यूज नहीं करेंगे, वो अगर उत्पादन का, औद्योगिक उत्पादन कोई परचेस नहीं करेंगे, तो फिर वैसे ही निर्माण होगा। लेकिन ऑन द लाइटर नोट आई सेड दिस, मुझे सीरियसली ये कहना है कि हम मानते हैं, और मैंने सभी अधिकारियों की मीटिंग लेकर तय किया कि लोगों ने एक अच्छा पर्यावरण क्या होता है वो देखा है, उनकी इच्छा है कि ऐसा बना रहे। कम से कम ये सुनिश्चित हम करें कि जितना प्रदूषण जो गुनाह करते हैं, जो वायलेशन करते हैं, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, वायलेशन वालों को, और उनको सजा होनी चाहिए। ये करने की जरूरत है, ये हम मानते हैं और करेंगे। नहीं, वो आपने जो कहा कि था वो जरूरत है, पर सवाल ये है कि जब आप गाड़ियां छूट कर देंगे, लोन सस्ते देंगे, तो लोग गाड़ियां खरीदेंगे ही ना। आप बैंक वालों बोलते हैं 8% पे लोन दे दीजिए, ये कर दीजिए, गाड़ियां जितनी हिंदुस्तान में चलती हैं प्राइवेट, तो लेकिन मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि गाड़ियों में पहले BS4 होता था फ्यूल, और गाड़ियों के वाहन भी BS3 या BS4 के स्टैंडर्ड के थे। लेकिन अब 1 अप्रैल से ये शुरू हुआ कि गाड़ियां भी नई आ रही है, वो BS6 कंप्लायंट है, और जो फ्यूल मिल रहा है देश भर में वो भी BS6 क्वालिटी का है। ये जैसे बढ़ता जाएगा वैसे 80% वाहनों का प्रदूषण कम हो जाएगा, ये आज की वास्तविकता है। एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, लोग आपने ज्यादा इंटरेस्टेड है, यंग एंटरप्रेन्योर है विशाल गुप्ता, उसने फेसबुक पे लिखा है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी इन द क्लाइमेट चेंज स्पेस फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर and how is government planning to support them through lucrative scheme policy? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर 450 गीगावाट, 4,50,000 मेगावाट का सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान घोषित किया, तो आने वाले 10-15 साल में जो ये होगा, उसके लिए अभी इतने नए रोजगार के अवसर है कि अनेक चीजें जो हम बाहर से मंगाते हैं, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये भारतीय उद्योगों को सबसे बड़ा
चैलेंज एक तरह से हमने दिया है कि आप आत्मनिर्भर भारत के तहत आप तैयार करो. What is Make in India? Make in India is actually we are calling people to come, innovate, invest, and make in India and sell with pride as made in India. That is the full vision of Make in India. प्रकाश जी, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन भी हैं, सवाल पूछ रहे हैं भाई, मोदी जी जो है और आपकी सरकार हर बार नारा बदलती रहती है. मेक इन इंडिया 2015 के अंदर नारा लगाया था, अब आत्मनिर्भर इंडिया इस बार लगा दिया, दोनों में फर्क क्या है? ये सवाल. फर्क है, आत्मनिर्भर भारत एक बड़ी व्यवस्था है. आत्मनिर्भर ये बड़ा ज्यादा विशाल कंसेप्ट है. मेक इन इंडिया एक उत्पादन की पद्धतियों को भारत में पैदा करने का वो मुद्दा है. तो दोनों में अलग है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है. नहीं, मेक इन इंडिया के दौरान भी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2016 से, अगर जब से 2014 से लेकर के चले, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. उसकी ग्रोथ जो है पिछले 6 साल के अंदर कम हुई है. इसका मतलब मेक इन इंडिया के अंदर और इम्पोर्ट्स हमारा ज्यादा बढ़ा है. 6 साल का ये नहीं है रिकॉर्ड. 6 साल का रिकॉर्ड हर बार बढ़ा है. पिछले एक साल भर में जरूर सवाल आए. आप ही का डेटा मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर, बट नॉट 6 years. That is what I mean. 2014 में 17% था, 14% हो गया है मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट. हाँ, ग्रोथ रेट हम बढ़ ही रहे हैं. बढ़ने में गति कभी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, इतना ही होता है. या ठीक है, आप कह सकते हैं इसको. सवाल ये है कि उनके जैसे कह रहे हैं कि नारा, एक आपने स्वच्छ भारत का नारा दिया था. स्वच्छ भारत नारा अब लगाना भूल गए आप सब लोग, बात ही नहीं भूल गए. भारत स्वच्छ भारत क्या? के नहीं, स्वच्छ भारत बहुत हो गया. पहले बताता हूँ, 12 करोड़ टॉयलेट्स हो गए देश में. तो जो सीवेज सब जगह होता था, या आप कहीं भी टूर पे जाते थे तो लोग लोटा डब्बा लेकर कहीं जा रहे थे, दिखते थे, अब नहीं दिख रहे. तो ये जो बदलाव आया, इससे गंदगी गई. दूसरी, जो सारा वेस्ट इकट्ठा करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस शुरू हुए, सब जगह वेस्ट कलेक्शन शुरू हुआ, तो उससे भी स्थिति बदली है. और अब मैं एक नई घोषणा आपके सामने करना चाहता हूँ आपके चैनल पे, कि अभी ये केवल म्यूनिसिपल टाउन तक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू थे, ग्राम पंचायत लेवल पे नहीं थे, केवल शहरों के नजदीक जो है उनको लागू थे. लेकिन अब हम सभी 3000 से ज्यादा बस्ती वाले सभी गांव में ये वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स लागू करेंगे. उस दिशा में हमारा प्रवास चल रहा है. नहीं, ये तो अच्छा काम किया. पर प्राइम मिनिस्टर जी पूछे कि 100 स्मार्ट सिटीज आपने डिक्लेयर किए थे, उस स्मार्ट सिटी की हालत कभी रिव्यू किया? ऑडिट रिपोर्ट में रोज हर 3 महीने में होता है. ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है 28% से ज्यादा खर्चा ही नहीं हुआ आपका. प्रधानमंत्री के अंदर जो मिनिस्ट्री आपके अर्बन डेवलपमेंट है, उसकी रिपोर्ट के अंदर मकान बने ही नहीं. मकान दो अलग चीजें हैं. रूरल में नई दिल्ली में रहते हैं आप, न्यू दिल्ली के बारे में लिखा है. न्यू दिल्ली जो स्मार्ट सिटी है आपका, उसके अंदर क्या स्मार्ट हुआ जो मैं बता रहा हूँ ना. न्यू दिल्ली में भी अब एक मैसिव हाउसिंग स्कीम शुरू की, और उसके लिए 40 लाख लोगों का जो कच्चे मकान में रहते थे, उनका पक्का करने का और स्थायी करने का और डेवलप करने का अवसर देने का निर्णय ऐतिहासिक हुआ है. स्मार्ट सिटी के अमल शुरू होगा. स्मार्ट सिटी के 5 जो पैरामीटर्स में नहीं आते घर बनाने वाली बात नहीं आती है. और ये घर बनाने का, देहात में 2 करोड़ घर बने, शहरों में जरा जमीन और इसके मुद्दे जैसे आते हैं तो थोड़े कम बने. पर अब जितना आपका डिपार्टमेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, तो मेरे को लगता है जैसे आप बोल रहे हैं, कभी सच्चाई गांव में जाकर के, जैसे आपने कहा बने शौचालय बने, बिल्कुल ठीक बात है आपकी जो कह रहे हैं, परंतु 38% 39% शौचालय यूज नहीं हो पा रहे क्योंकि पानी और नहीं, ये नहीं सच है. ये सच नहीं है. ऑडिट रिपोर्ट है कई स्टेट्स की. नहीं, ये सत्य नहीं है. जब पानी नहीं है उसका, वहां पानी और सुविधा नहीं है. ऐसा है, आज ऐसी स्थिति नहीं है. 6 लाख गांव है. 6 लाख गांव में 6000 गांवों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाकी जगह नहीं है. और वहां भी लोग जहां से खुद का पानी पीने का लाते हैं, वैसे पानी बाल्टी में लेकर जाते हैं और टॉयलेट को साफ रखते हैं. टॉयलेट ये भारत के नए कल्चर का हिस्सा बन गया है, और वो एक बहुत सफल स्टोरी है.
नहीं तो मैं कहता रहा हूँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे मैं क्योंकि जो सवाल आ रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके अंदर अब एक सवाल अभी सडनली आया है कि चाइना की आपने सारी एप्स बंद कर दी, अब चाइना से दोस्ती हो गई आपकी, वो चले गए बाहर वापस, तो आप सारे एप्स के लिफ्ट कर लेंगे आप इनका बैन? देखो, निर्णय अलग अलग होते हैं। एक हमारे पहले आत्मनिर्भर भारत का एक मुद्दा ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आज हम आयात कर रहे हैं वो भारत में बने, और भारत में बनने के लिए कोई निर्णय अगर सरकार करती है तो भारत में जितनी चीजें बनेंगे उतना फायदा होगा। कि भारत में जितनी चीजें, तो बात ठीक है आपकी, पर अपॉइंटमेंट जो एप्स आपने कैंसिल की हैं उसके बाद लगता है कि ये कांग्रेस का कहना कि सिंबॉलिक है, उनका कोई ज्यादा बिजनेस यहाँ पर था नहीं, इसको सिर्फ सिंबॉलिक साइकोलॉजिकल है, जो चाइना की असली इन्वेस्टमेंट है अभी भी आपने बंद नहीं की है, कई प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। ऐसा है, इसके बारे में सरकार जब भी कभी कोई निर्णय करता है, ये पीयूष जी का मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री और बाकी मंत्रालय मिलकर जब निर्णय करते हैं तो हम घोषित करते, छुपा के थोड़े ही करते हैं। तो आज निर्णय हुआ है और ये चाइनीज ऐप बैन किए, तो आपने देखा भारतीय एप्स जो उसके एवज में थे, जिन्होंने नए शुरू किए थे, उनको 10-10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, करेक्ट, वो बात तो ये होता है। नहीं, कई बार उसके बाद जल्दी में जो काम होता है, जैसे अभी कहते हैं कि वेंटिलेटर आपके कोई बने बड़े इंफीरियर क्वालिटी के हैं, 5 महीने पहले हमारे यहाँ मास्क नहीं बनता था, 5 महीने पहले हमारे यहाँ पीपीई किट्स नहीं बनता था, 5 महीने पहले हमारे यहाँ स्वैप स्टिक नहीं बनती थी, 5 महीने पहले हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनता था, आज सब बनने लगा और हम आत्मनिर्भर हो गए। ये महत्वपूर्ण है। क्वालिटी की बात भी होती है ना, मास्क कितने हैं, क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी है। अब हमारे एक्टिव केसेस जो है क्वालिटी हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस 2,60,000 के करीब हैं और मास्क की क्वालिटी उससे ज्यादा है, ब्रांड जो है उससे ज्यादा मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, अच्छी बात है। तो लोग आएंगे ना, अच्छी चीज है। आपसे जो एक एक भी नहीं बनते थे वो अब इतने बनने लगे। हाँ, ये बिजनेस एक्टिविटी बढ़ गई है, ये बात ठीक है। मैं आपसे सवाल आखिरी ये पूछने वाला हूँ कि जब आप फिगर्स रिलीज कर रहे हैं देश के अंदर, लगता है कि इंडिया अब जो है तीसरे नंबर पे आ गया है, रशिया को भी क्रॉस कर लिया है, तो उसके अंदर क्या मिसमैनेजमेंट हुआ या परसेप्शन की बात है? नहीं, वो बता रहा हूँ। अच्छा चीज 130 करोड़ का सवाल है, मैं लिख रहा हूँ इसको। मैं आपको बताता हूँ, आज भी अमेरिका, रूस, यूरोपियन देश, ब्राजील तुलना में, या ईरान हो, ब्राजील हो, इनके तुलना में 10 लाख के आबादी में कितने एक्टिव केसेस, 10 लाख के आबादी में कितने संक्रमण और 10 लाख के आबादी में कितनी मृत्यु, यह अगर देखोगे तो भारत की स्थिति अभी भी अन्य अनेक देशों से काफी ठीक है। लेकिन ये संकट ही अजीब है, ये महामारी है, कैसे आएगी, कहां से आई, कैसी बढ़ेगी। अब भारत में भी देखो, आज 600 जिले अच्छे चल रहे हैं, जहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट, ऐसे 8 सिटीज में सबसे ज्यादा 80%। हाँ, तो ज्यादा है, उतना है। ये बाकी देश भर में, वही बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि आप अच्छा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, परसेप्शन क्रिएट करना आपकी जिम्मेवारी है गवर्नमेंट की तरफ से। जब आप कैंसर का जैसे है, कैंसर के कितने लोग बीमार हैं आज, आप बताते क्यों नहीं? कैंसर जिनका ठीक हो गया उसको भी इंक्लूड करेंगे क्या आप? आज देश के अंदर कितने कैंसर के जो अस्पताल में हैं उन्हीं को गिनेंगे, जो ठीक है उनको तो ना गिनते हैं आप। पर ये आपने जो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी जिसको मैं कहता हूँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो ठीक भी हो गए, आपको उसके कहने क्या मतलब क्या है? ये कहना चाहिए नए केसेस इतने हुए? नहीं, ये उसका नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो टोटल नंबर बढ़ाने से तो पैनिक क्रिएट होता है, इसलिए इसका अर्थ है, अभी पहले वर्ष में ये अर्थ ये है कि जो नई बीमारी होती है तो उसमें लोगों को इतना रिस्क लगता है कि भाई क्या होगा आगे, तो उनको आश्वस्त करने की जरूरत होती है कि इनके इतने लोगों को संक्रमण हुआ लेकिन इतने ठीक भी हुए। वो तो देते भी ना, पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो ब्रीफिंग भी थोड़ी कम कर दी, बिल्कुल ही कम हो गई। अब बताते हैं 7 लाख हो गए, 7 लाख में 4,50,000 ठीक हो गए, वो सेकंड फिगर आती है। जो आदमी टोटल जो ठीक हो गए, किसी बीमारी की टोटल नहीं देते, क्योंकि टीबी की पेशेंट में देखेंगे अगर आप बताएंगे। इसलिए आपने शुरू में सवाल जो पूछा कि 2 लाख एक्टिव केसेस है, वो करेक्ट है, हाँ, करेक्ट है।
तो आप टोटल क्यों देते हैं? जो ठीक हो गया उनको क्यों include करते हैं टोटल के अंदर? धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स भी वही देने लगे हैं, बहुत बदलाव हो रहा है। तो आपकी तरफ से स्टेटमेंट आती है शाम को पीआईबी की तरफ से, टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर फिगर पहले दी होती है पीआईबी के अंदर, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो ठीक हो गए उनको इंक्लूड करने से पैनिक बढ़ता है ना कि इतने हो गए। आप ये अच्छा सुझाव है, इस पर हम अमल करेंगे। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछने में जा रहा हूँ। जी बताइए। ये जो आपकी एक एचआरडी जब मिनिस्टर थे आप, वो भी आपकी तरफ से जवाब देंगे कि नहीं? तब आपने पॉलिसी बनाई थी, एजुकेशन पॉलिसी बनेगी, बनी, उसके बाद उसका स्मृति जी भी कुछ पहले थी, उन्होंने कुछ बनाई, वो आज तक नहीं इम्प्लीमेंट हुई, ना बनी। लोग कोविड में चले गए, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, ये कंफ्यूजन जो एजुकेशन सेक्टर में है, ये क्या कारण है? इसका क्या आपकी सरकार में कंफ्यूजन क्यों है इस एजुकेशन सेक्टर में? ये कंफ्यूजन नहीं है, एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया 6 साल हो गए। कस्तूरी रंगन कमेटी ने अच्छा एक्सरसाइज किया, तो उसके द्वारा वो पॉलिसी आई, पॉलिसी का परीक्षण हुआ, उस पर भी 5-6 लाख सजेशंस आए, वो सब लेके आज सारा ड्राफ्ट लगभग तैयार है। तो इस पर यथासंभव सरकार निर्णय करेगी और सबके सामने आएगी। क्योंकि आपके जमाने में शुरू हुई, स्मृति जी ने उसको किया, फिर उसके बाद निशंक जी कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि आपकी सरकार, मोदी सरकार तुरंत फैसले लेने के लिए मशहूर है, एकदम फैसला लिया है। लेकिन पॉलिसी होती है, उसको समय तो पर्याप्त देना चाहिए। एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी चलने वाली पॉलिसी बनाते समय, और शिक्षा जैसा जो हर घर का विषय है, उसमें आपको ये करना पड़ेगा। प्रकाश जी, आप बताइए, आप पिछले 4 महीने के अंदर 115-16 दिन हो गए, इसके अंदर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो करते हैं, बांटने में, एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपका क्या एक्सपीरियंस, अनुभव क्या रहा, क्या कठिनाइयां हैं, क्या आपको लगा, क्या एक्सपीरियंस हुआ इसके अंदर? ऐसा है, आपने पहले प्रश्न में कहा था कि ये आखिरी प्रश्न है, लेकिन मैं अब आखिरी उत्तर दे रहा हूँ। और पहले क्वेश्चन मैंने कहा आखिरी है, तो फिर गलत है। तो इसलिए मैं अभी ये कहूंगा कि डिसेमिनेशन, देखो, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना या सब ये अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, मीडिया की आजादी अक्षुण्ण रखना, क्योंकि आप भी थे जेल में, हम भी थे, तो उसका कारण ये था कि मीडिया की आजादी को खत्म किया, सेंसरशिप लाया, उसके खिलाफ हम लड़े हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये सब का विचार करना चाहिए, और वो काम करते समय निश्चित आनंद आता है। मुझे तो आई एम हैप्पी। थैंक यू वेरी मच कमिंग। चलिए करेक्शन कर लूं, मैं जेल में एक दिन के लिए रहा, ज्यादा नहीं रहा। आप लोग बड़े सेक्रीफाइस किए, मैंने उतना नहीं किया, पर हमारे शो में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।